Well, okay. Today we are going to discuss about the doctrine of lapse. We have studied so far how the different methods were used by the Britishers to extend their empire. Is there anybody from Hindi medium out of you three of you, Shahili, Sharayu, and Takshana? No. No, Shahili, everybody is English medium. Okay, fine. So, uh, like we have seen so far, how they have used the methods like they have fought direct war with some of the power. They have used the combination of war and the pressure tactics, like they have done in case of Sindh. They have used subsidiary alliances, which they went on modifying time and again, so that they can have more and more influence on the Indian kings. And now we are going to discuss about one more instrument that they have used to extend the empire, that is called doctrine of lapse. Doctrine of lapse के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे. So let me just share with you. Well, okay. तो ये जो डलहौसी की जो नीति थी, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, विलीनीकरण की पॉलिसी बोलते हैं. हिंदी में अभी क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा. वेल, तो ये जो डलहौसी ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया. ऐसी बात नहीं कि इसके पहले नीति यहाँ पर नहीं थी. दिस पॉलिसी वाज देयर, बट इट वाज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली. दैट वी विल बी सीइंग इन द बैकग्राउंड लेटर ऑन. Dalhousie, he became governor general in 1848. He was very young person and quite ambitious, and he was determined that I will extend the British rule. And when he came, he just said that extension of all native states of India is just a question of time. They are going to be extinct. It is just a matter of time. And he took a stand that the British export and their business, it has suffered because this Indian ruler, they are not properly handling their own administration. And they also took a stand that the allies, their purpose is already served now. They we needed them as a friend when there was a political uncertainty. Our rule was not very firmly established. Now as our rule is very firmly established, Sindh is also captured, Punjab is also no more, Punjab became part of British Empire in 1849. So what is the need of this Indian ruler? इनको हम लोग निकाल देते हैं and we will appropriate, we will take that land directly into the British Empire. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शॉर्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय शासक की अगर मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अगर अपनी संतान नहीं होती, अपना बेटा अगर उसका नहीं होता है जो कि उसको गद्दी पे सक्सीड करे, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया जाता था. ये विलीनीकरण की नीति थी. That was the doctrine of lapse, that if any Indian ruler dies and if he doesn't have a natural heir successor, his kingdom will be lapsed into the British Empire. नाउ दिस, अगर किसी का बेटा नहीं होता था तो किसी बच्चे को गोद लेके उसको अडॉप्ट करके उसको अपने बेटे की तरह छोटे से बचपन से बड़ा करना और बाद में उसको अपना सक्सेसर बनाना, ये बहुत एज ओल्ड प्रैक्टिस थी, बहुत सदियों से चली आ रही थी. और भारत में ब्रिटिशों के आने से पहले जो भी पैरामाउंट पावर हुआ करती थी, मुगल या पेशवा, इन्होंने कभी इसमें दखल नहीं दी. उन्होंने कहा कि ठीक है, राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो अगर किसी को गोद लेता है, उसको अपने बेटे की तरह मानता है, तो वो सक्सीड कर सकता है. देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर. और ये जो ब्रिटिश होते थे वो अपने आप को मुगल और पेशवा के सक्सेसर मानते थे, बट दे हैव चेंज दिस पॉलिसी टू सूट देयर एम्पेरियलिस्टिक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. शुरू में इवन ब्रिटिशों ने भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया. जो गोद लिए हुए बच्चे को एक नेक्स्ट रूलर एक्सेप्ट करना उन्होंने भी शुरू रखा. उदाहरण के तौर पर 1827 में जब दौलत राज सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी जो विडोज थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को गोद लिया जाए, वो चाहती थी कि सारी पावर उसके हाथ में रहे. लेकिन इसमें ब्रिटिशों ने इंटरफेयर किया. ब्रिटिशों ने दे कंपेल्ड द विडो टू अडॉप्ट जनकोजी सिंधिया as the child, and the Jankoji Sindhya later on became the ruler of Gwalior. उसी तरीके से किशनगढ़ के जो राजा थे, उन्होंने 1841 में एक बच्चे को गोद लिया और उसको कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया था. बट लेकिन लेटर ऑन द ब्रिटिशर्स दे ब्रॉट द चेंजेस इन देयर पॉलिसी. इनफैक्ट 1841 से पहले ही इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ब्रिटिशों ने लाने शुरू
were very clever. कोई भी काम वो सडनली नहीं करते थे. They used to think, they used to study the situation, and then they used to implement the policy. That is the reason हम लोग जनरली देखते हैं कि whatever area came under the domination of the Britishers, they hold on to it. वो वापस कभी भारतीय शासक ले नहीं पाए, because they thought well before proceeding on the conquest or before implementing any policy. उसी तरीके से ये लोग हम लोग देखते हैं कि 1848 के बाद में लॉर्ड डलहौसी ने इसको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी. उदाहरण के तौर पर 1834 में ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंग्लैंड में जो बैठते थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहार को कंट्रोल करते थे इंग्लैंड से, उन्होंने 1834 में ही एक रिजोल्यूशन पास कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ये जो सक्सेशन जो है अडॉप्ट लेने की बात जो है, गोद लेने की जो बात है, it will not continue as a kind of accepted policy. लेकिन किसी एक्सेप्शनल केस में ही हम लोग किसी के राजा को गोद लेने की परमिशन दे सकते हैं, एंड दैट विल आल्सो बी एज अ स्पेशल मार्क ऑफ फेवर. उसको हम लोग एज अ फेवर दे, ना कि दे कैन नॉट डिमांड इट एज अ काइंड ऑफ राइट. 1841 में they decided that we will be following this uniform policy. We will not 1834 में उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी को दे अपनी मर्जी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्जी के जो राजा महाराजा होते हैं उनको ये स्पेशल परमिशन दिया जाए. लेकिन 1841 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी कोई जरूरत नहीं. वी विल फॉर्म दिस यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड वी विल नॉट अलाउ, अगर राजा का कोई अपना बच्चा नहीं होता है तो वी विल नॉट अलाउ him to adopt the child, or even if we adopt that child will not succeed, that child will not become the next ruler. और इसी आधार पर, इसी नियम के आधार पर उन्होंने मांडवी स्टेट वाज अनेक्स इन 1839 में. मांडवी का जो राज्य था वो उन्होंने अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया. कोलबा एंड जालौन 1840 में और सुरतीन ये 1842 में. ये छोटे छोटे राज्य थे, इसकी बहुत ज्यादा कहीं चर्चा हमें नजर नहीं आती है, और भारतीय शासक आपस में मिले हुए भी नहीं थे कि कोई ब्रिटिशों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके या ब्रिटिशों का विरोध कर सके. अभी ये चला आ रहा था, लेकिन इसका डलहौसी का योगदान ये है कि इसके पहले आमतौर पर 1848 से पहले, डलहौसी हिंदुस्तान भारत में आने से पहले, एक सामान्य तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि जहां पर भी ये अनेक्सेशन करना आवश्यक हो जाता है तभी उसको अनेक्स कर लेते थे, विलीन कर लेते थे. अदरवाइज टू द एक्सटेंट जहां तक हो सके उस राज्य को कंटिन्यू करने की कोशिश की जाती थी. लेकिन इसके विपरीत डलहौसी ने क्या किया, उसने ये नियम उल्टा कर दिया. जहां जहां भी पॉसिबिलिटी हो अनेक्स करने की, राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने की, वहां उसने कोशिश की, एंड कोई उसने चांस नहीं छोड़ा. उदाहरण के तौर पर मिस्टर इन्स जो इसके बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं कि अबाउट डलहौसी, हिज प्रीडिसेसर हैड एक्टेड ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग एनेक्सेशन इफ इट कुड बी अवॉइडेड. जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए एनेक्सेशन. Dalhousie acted on the general principle of annexing if he could do so legitimately. अगर वो अनेक्स कर सकता है legitimately, न्याय रूप से भी उसने नहीं किया. अभी हम लोग एक एक केस पढ़ेंगे, 2-3 केसेस जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, and from that we will understand the attitude of the Britishers towards the Indian princess. और ये एक कोइंसिडेंस भी था. हम लोगों ने कोइंसिडेंस पढ़ा है ना हिस्ट्री में, the doctrine of Cleopatra's nose, योगा योग, उसमें कोइंसिडेंस, कोई हिस्टोरिकल रीजन हमें नहीं मिलता है कॉजेशन जब हम करने की कोशिश करते हैं. तो डलहौसी के समय भी एक कोइंसिडेंस ऐसा था कि when Dalhousie became governor general, that time there were significant number of the Indian ruler who did not had the son. उस समय कोइंसिडेंटली योगा योग ऐसा था कि कई सारे भारतीय रूलर ऐसे थे जिनका अपना बेटा नहीं था. So all those states he annexed, and so many states he annexed by applying this doctrine. और डलहौसी ने एक गलती कर दी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक उसने ये कर दी थी कि he did not differentiate between the protected allies and the dependent principalities or subordinate states. इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ. डिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज मतलब ऐसे राज्य जो कि ब्रिटिशों के ऊपर ही निर्भर थे,
और प्रोटेक्टेड अलाइज का मतलब होता है, अलाइज मतलब फ्रेंड, प्रोटेक्टेड अलाइज मतलब फ्रेंड है, उसको ब्रिटिश प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन रिटर्न ऑफ द मनी और इन रिटर्न ऑफ द लैंड। ही डिड नॉट डिफरेंशिएट। जो प्रोटेक्टेड अलाइज भी थे, जिन्होंने फ्रेंडली ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशों के साथ में, ही ट्रीटेड देम एज अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट। उसने कहा कि ये भी हमारे ऊपर निर्भर है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैरामाउंट पावर है, सुप्रीम पावर है। ये उसकी मर्जी के ऊपर था कि उसने किसी को राजा बनाया और अभी राजा का बेटा नहीं तो वो उस राज्य को ले सकता है, हमने ये राज्य दिया है, इस तरीके की नीति उसकी थी। एंड ही फॉरगॉट दैट there were a number of kingdom which were existing in India before the coming of the Britishers. Dalhousie he divided Indian states into three categories. The states which were created by the Britishers, number one. Number two, the states dependent on the Britishers. These states were dependent on the Mughal emperor और पेशवा। ऐसे स्टेट जो कि पहले मुगलों के ऊपर या पेशवा के ऊपर निर्भर हुआ करते थे और अभी ब्रिटिशों के ऊपर निर्भर है। एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और पहले जो स्टेट्स थे ब्रिटिशों ने जिसको बनाया था, he decided that they will not be given any right to adopt the son. The adopted son जो सेकंड कैटेगरी की जो स्टेट थे, पहले जो पेशवा और मुगल के ऊपर जो निर्भर थे, अभी जो ब्रिटिशों के ऊपर निर्भर है, उस केस में सक्सेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है। राजा का अगर चाइल्ड अगर है तो वो नेक्स्ट राजा बन सकता है, नेक्स्ट रूलर बन सकता है, लेकिन अडॉप्ट करने से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लेना अनिवार्य हो गया है, अनिवार्य है। इफ he takes permission before the adopting the child, then only that child will be considered as a successor. अब थर्ड कैटेगरी की जो स्टेट थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, प्रोटेक्टेड अलाइज, जैसे मैंने बताया आपको कि दे वेर अलाइज ऑफ द ब्रिटिश, दे हैड फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिशर्स, दे वर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स। इस केस में उसने कहा कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, आई विल नॉट इंटरफेयर इन दिस स्टेट। बट these differences were not very clearly demarked. Dalhousie has interpreted the state according to his convenience. जैसे कि मैं शुरू में बता चुका हूँ, the protected allies भी जो थे उसको उन्होंने डिपेंडेंट स्टेट माना और उसको फिर बर्खास्त कर दिया, उसको विलीन कर दिया, he assimilated। और ये this is where the aggressive policy of the Britishers is visible. So जैसे ही ब्रिटिश स्ट्रांग हो गए, they no longer felt the need that they should rule the Indian territory through the Indian ruler and we will just assimilate them. और ब्रिटिशों की ये नीति को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कारण भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी थी उस समय, और हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज इंपेरियलिज्म को बढ़ावा देने वाली एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। एज द इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड वेर इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल, खासकर कॉटन इंडस्ट्रीज काफी डेवलप हो गई थी और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज उनको चाहिए था। सो दे वर ऑलवेज लुकिंग फॉर कॉलोनीज एंड इनफैक्ट दिस बिकेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ द होल इंडिया। और यहाँ पर भी वही बात लागू पड़ती है कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी और रॉ मटेरियल की जरूरत उनको पड़ रही थी। कंपटीशन फॉर कॉलोनीज अमंग द यूरोपियन कंट्रीज में कंपटीशन थी कॉलोनीज के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है इंपेरियलिज्म का। एंड द ब्रिटिशर्स दे वर इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर इन इंडिया। लॉस ऑफ अमेरिकन टेरिटरी, अमेरिकन टेरिटरी का लॉस होने के बाद में जो कॉटन अमेरिका से इंग्लैंड में आता था, इंग्लैंड की फैक्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल, वो बंद हो गया एंड दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। and that is the reason Warad, जो कल हमने पढ़ा था, how they took Warad from Nawab, and in 1819 they took a part of Warad from Bhosle. Warad was divided between between Nizam of Hyderabad and Bhosles of Nagpur. So they took that in 1818 itself from Bhosles, part of it, and later on they took it from Nizam of Hyderabad. Well, so loss of American colonies has also intensified the greed for land. दूसरी बात ये थी कि अभी कम्युनिकेशन यहाँ पर डेवलप होने लगा था, रेल आने लगी थी और टेलीग्राम भी शुरू हो गया था धीरे धीरे। तो यहाँ पर देयर वाज इम्पोर्टेंट इशू, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट कम्युनिकेशन जब करने की कोशिश करते थे तो बीच में ये राज्य आ जाते थे भारतीय राजाओं के, और ब्रिटिशों को लगा कि ये कम्युनिकेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल भोसले की जो किंगडम थी दैट वाज इन द मिडल ऑफ इंडिया, और अगर नॉर्थ से साउथ को अगर जोड़ना है, रेल की लाइन अगर हमें लगानी है, रेलवे का नेटवर्क अगर बिछाना है, तो वी हैव टू गो थ्रू द किंगडम ऑफ भोसले एंड द भोसले में क्रिएट अ प्रॉब्लम, ही में आस्क फॉर मोर मनी, सो एंड सो फोर्थ। तो इससे अच्छा होगा इनको पूरी तरीके से समाप्ति कर दिया जाए, सारा इंडिया एक साथ ब्रिटिश अमल के नीचे आ जाएगा, इट विल कम कंप्लीटली under the British domination, and then we will have an easy way of communicating, connecting the parts, Indian parts to each other. Of course ये पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, we know that
at the time of independence 1947 there were more than 500 princely states in India, क्योंकि 1857 के बाद में आमतौर पर ब्रिटिशों ने इस नीति का त्याग कर दिया. They did not directly encroach on the lands of the Indian rulers because the revolt was very violent. Well, so you know, this small princely state, they created difficulties of communication, and like लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. लॉर्ड डलहौसी का भी ओपिनियन यही था कि भारतीय प्रशासकों की जो प्रशासकीय व्यवस्था है, that प्रशासकीय व्यवस्था, that administrative structure is not good, that is not suitable for the people, and the people who are being ruled by these Indian princes, Indian ruler जिसके ऊपर राज्य करते हैं, उन लोगों की इच्छा है कि हम लोग ब्रिटिश प्रशासन के अंडर आ जाए, ब्रिटिशों के सिटीजन बने. और इसी पॉलिसी को लेके, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेके, उसने जो राज्य एसिमिलेट कर दिए, उसको समाप्त कर दिया और उनकी जमीन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी. वो है सातारा का राज्य 1848 और संबलपुर का राज्य 1853 और नागपुर का 1854. तो उसमें से कुछ केसेस हम लोग पढ़ेंगे. उदाहरण के तौर पर सातारा और झांसी, ये 2-3 केसेस हम लोग पढ़ेंगे. सातारा का जो राज्य है 1848 में समाप्त कर दिया गया. और इस राज्य का थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि सातारा का राज्य बहुत पहले से ही अस्तित्व में था. छत्रपति शिवाजी ने जब अपना राज्य बनाया था 1650 के बाद में उसने शुरुआत की थी. 1674 में उसने अपना राज्याभिषेक किया था. और बाद में छत्रपति शिवाजी के बाद में फिर संभाजी, राजाराम ये बने. और उसके बाद में 1707 में क्या हुआ, ये मराठों की जो गादी है, इस ये दो it got bifurcated into the two house. ये दो घरों में बट गई. एक कोल्हापुर के थे, एक और एक सातारा में थे. तो सातारा और ये कोल्हापुर दोनों जो राज्य थे, ये बहुत पहले से चले आ रहे थे. उदाहरण के तौर पर शाहू जो 1707 में मराठों का राजा बना, उसने सातारा में अपनी राजधानी बनाई थी अगले साल ही 1708 में. तो सातारा का राज्य तभी से चल रहा था. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो शाहू के जो सक्सेसर थे, उसके बाद में जो सातारा के राजा बने, वो उतने कैपेबल नहीं थे. दे वर नॉट वेरी कैपेबल. तो सारी की सारी पावर जो है वो पेशवा के हाथ में चली गई, जो कि पुणे से रूल करते थे. और हमने ये एंग्लो मराठा वॉर में पढ़ा है. बाजीराव सेकंड को जब ब्रिटिशों ने फाइनली हरा दिया 1818 में, तो उस लड़ाई के दौरान जो पेशवा था, छत्रपति को अपने साथ में लेके घूमता था, ताकि छत्रपति वाज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द मराठा एम्पायर और द मराठा रूल, एंड ही वाज हैविंग लॉट ऑफ प्रेस्टीज इन महाराष्ट्र. तो ब्रिटिशों ने क्या प्रचार शुरू किया उस समय से, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समय, that Bajirao is these Peshwas, they have sidelined the house of Shivaji. पेशवा ने शिवाजी के जो वंशज थे, जो छत्रपति थे, उनको साइड में कर दिया और सारी पकी सारी पावर जो है वो अपने हाथों में ले ली. अब इसके कारण क्या हुआ, इस तरीके का उन्हें प्रचार शुरू कर दिया. और जब पेशवा को जब अंत में हरा दिया, तो उन्होंने सातारा में दोबारा भोसले राजा जो राजवंश के थे, शिवाजी के वंशज थे, उनकी दोबारा पुनर्स्थापना कर दी. तो इससे हमें साफ पता होता है कि दैट वाज नॉट अ किंगडम व्हिच इज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश. द किंगडम वाज इन एग्जिस्टेंस. देयर हैड बीन अप्स एंड डाउन्स. उनकी पावर जरूर खत्म हो गई थी या कम हो गई थी, बट द किंगडम हैड बीन इन एग्जिस्टेंस बिफोर द ब्रिटिशर्स केम. But they continue to interfere in that kingdom after 1818. In 1839 प्रताप सिंह जो थे वहां के छत्रपति, उनको हटा दिया गया और उनके भाई जो थे अप्पा साहब, उनको छत्रपति बना दिया गया. 1848 में इस छत्रपति की मृत्यु हो गई एंड उसने अपने मृत्यु से पहले एक बच्चे को गोद ले लिया था. लेकिन डलहौसी ने डिक्लेयर कर दिया कि छत्रपति हैज नॉट टेकन प्रायर परमिशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने बच्चे को गोद लेने से पहले प्रायर परमिशन नहीं ली थी, इसलिए सातारा की जो किंगडम है वो लैप्स हो गई, वो ब्रिटिश एम्पायर में एसिमिलेट हो गई. अभी बैकग्राउंड जो मैं आपको बता चुका, उससे आपको पता चलता है कि किंगडम वाज नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश, बट इट वाज इन एग्जिस्टेंस मच बिफोर. वो शुरू से बहुत पहले से एग्जिस्टेंस में थी. बट यू नो द ब्रिटिश, दे ओपनली वायलेटेड द इथिक. In 1919, when after the Third Anglo-Maratha War, when the Britishers signed an agreement with the Chhatrapati of Satara, उस समय उन्होंने सातारा का जो राज्य था, एक स्वतंत्र राज्य है, इस बात को कबूल किया था.
लेकिन 1848 में दे केयरफुली इग्नोर दिस, एक अपनी स्वार्थ के लिए उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया एंड कहा कि वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू अप्रूव द सक्सेशन, सक्सेशन हमें अप्रूव करना कोई कंपलसरी नहीं है। एल्फिस्टाइन जो एक ब्रिटिश बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे महाराष्ट्र में, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि व्हाट कंपनी हैज डन हियर विथ द किंग ऑफ सातारा इज नॉट राइट, इट इज अनजस्टिफाइड। Now let us talk about the next kingdom, that is Nagpur kingdom, and this was assimilated in 1854. कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो था भोसले से 1818 में ही ब्रिटिशों ने ले लिया था, और 1853 में देखिए क्या 1818 में जब ब्रिटिशों ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठों को हराया, नागपुर और भोसले को हराया, उस समय उन्होंने रघुजी थर्ड को राजा बनाया। और रघुजी थर्ड जो था ये एक उस समय छोटा बच्चा था, और जब वो बड़ा हो गया, when he came of age in 1826, I think, just a minute, हाँ यस, 1826 में जब ये रघुजी बड़ा हो गया, when he became matured, उस समय उस रघुजी के साथ में रघुजी ने एक एग्रीमेंट साइन कर दी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट द एरिया ऑफ वराड इज नाउ गिवन टू ब्रिटिश. That area was actually occupied in 1818 itself, but by the sanction of the Maratha king of Nagpur, Bhosle king of Nagpur, Raghuji III, now that area is given to British. So, you know, in 1826, British have acknowledged that the area was rightfully belonged to the king of Nagpur, that is Bhosle king. That means they are independent king, and though they have surrendered, but that was not a kingdom which is created by the Britishers. That was in existence. And in 1853, this Raghuji Bhosle, he dies, and he could not adopt son before his death, but he repeatedly asked for permission that should be given to him to adopt a child. लेकिन उसको लगा कि बिना परमिशन के मैं अगर चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेता हूँ, गोद ले लेता हूँ, तो हो सकता है ब्रिटिश इस बात को मानेंगे नहीं, एंड बिफोर दैट मैटर इज रिजॉल्व्ड ही डाइज. एंड इट वाज अ डेलिबरेट पॉलिसी ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स दैट दे कंटिन्यू टू डिले, क्योंकि जिस लड़के को, जिस बच्चे को गोद लेना चाहता था अप्पा साहब भोसले, that child was brought up in the palace of Bhosle, and he was considered as the child of Raghuji III. मतलब he was brought up like a prince, like a future successor. जब उसका जन्म हुआ तो तोहफों की सलामी दी गई, जैसे कि प्रिंस के लिए किया जाता था वगैरह वगैरह. तो you know he but he dies, and at the time of his death he told his wife कि you adopt अप्पा साहब को आप गोद में ले लो, उसको अडॉप्ट कर लो. एंड उसकी मृत्यु के बाद में रानी ने अप्पा साहब को गोद ले लिया, लेकिन अभी अभी मृत्यु हो गई थी राजा की, इसलिए गोद लेने की बहुत बड़ी सेरेमनी उन्होंने नहीं की. एंड देन यू नो शी कंटिन्यू टू राइट लेटर टू ब्रिटिश रेसिडेंट and Governor General that approve the succession, approve the adaptation of Appa Sahib. But you know, instead of doing that, immediately after the death of Raghuji III, and when this queen had the child, what British resident has done is that he locked the treasury, और इसके साथ साथ में declared that in the absence of the legal heir, Nagpur kingdom is lapsed into the British Empire. और उसके साथ साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी भोसला फैमिली की उन्होंने जब्त कर दी. Nagpur kingdom was not created by the British. British acknowledged in 1818 and again in 1826 that Nagpur is an independent kingdom. Dalhousie now 1854 he declared that the kingdom which is given to the Bhosle by the Britishers is lapsed. That is again a lie. That is a very unethical diplomacy. In 1818, they promised that the kingdom of Nagpur will remain with the successor of Bhosle. So, you know, what were the advantages to the British in 1854? They declared that, you know, apart from the huge area, they are getting large population. The area was around 80,000 miles. Yearly revenue was 40 lakh rupees per year. And now the Nizam territory was surrounded from all sides by the Britishers. So that was a tactical advantage. And Nagpur being in the middle of India, the communication became now easier because now they can connect Kolkata and Madras. ये दोनों के बीच में नागपुर आता था, दोनों को कनेक्ट कर सकते थे by the means of communication. And the Britishers did not stop only at assimilating the kingdom. They have given a very disrespectful treatment to the royal family. They took charge of private possession. The animals which were there, they were sent to butchery.
and the elephants, horses, bullocks, they were sold at a very throwaway prices. The costly furniture was carried away. The ornaments were auctioned, and some of the ornaments which could not be sold at Nagpur were sold at Kolkata. And in this, we just can't blame the Britishers. Those Indians who were supporting and working for East India Company, they also benefited by this. They took away all this, furniture, whatever they could lay their hands. And this treatment given to royal family, it has caused a lot of anger among the population. And in 18 well, let us now talk about the next kingdom that was again assimilated by the Britishers, that is Kingdom of Jhansi. It was done in 1854, 1 year before Nagpur. In 1817, the British, they imposed agreement on Peshwa, and now after this Jhansi, which was dependent on Peshwa, it came to the British. During that the phase between the second Anglo-Maratha War and the third Anglo-Maratha War, when the Britishers were looking for an opportunity to increase their influence in the Maratha kingdom, मराठों के राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाने की जब ब्रिटिश कोशिश कर रहे थे, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1805 में समाप्त हुआ, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो कि 1818 में लड़ा गया, उसके बीच में ये झांसी की किंगडम जो है ब्रिटिशों ने अपने अधीन कर ली. उस समय राव रामचंद्र, he was made king of Jhansi by Lord Hardinge, and it was declared that Jhansi will remain with the successor, biological हो या adopted हो. This king, he dies, Rao Ramchandra, in 1835, but before his death he adopted a son. लेकिन ब्रिटिशों ने उस एडॉप्टेड सन को नहीं माना, एंड उसके जो अंकल थे राव रामचंद्र के, रघुनाथ राव, उनको रूलर बना दिया गया. उनकी भी जब मृत्यु हो गई तो गंगाधर राव को रूलर बना दिया गया. और ये गंगाधर राव जो थे, इनका भी कोई बच्चा नहीं था, तो बिफोर हिज डेथ इन 1853 ही अडॉप्टेड अ चाइल्ड, एंड वहाँ बुंदेलखंड के जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट होते थे, मेजर इलाइस, उनको उन्होंने लिखा कि आप इसको परमिट कर दीजिए, आप इसको एक्नॉलेज कर दीजिए. And he also reminded him that there is an agreement signed between the King of Jhansi and the British in 1817 itself, and according to that agreement, Britishers are under obligation to recognize the successor, whether adopted or biological. But Dalhousie refused to accept the adopted son, and he declared that the Kingdom of Jhansi is merged with the British Empire. So ये तीन important states है, और करीब करीब आमतौर पर इसी तरीके की पॉलिसी ब्रिटिशों ने बाकी जगह भी इंप्लीमेंट की. तो ये तीन का थोड़ा सा विस्तार में बताना जरूरी था. और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए कि ब्रिटिश एम्पायर जो थी वो काफी एक्सटेंड हो गई. जो जिस किंगडम को भी ब्रिटिशों ने एसिमिलेट कर दिया, लैप्स कर दिया, उसकी सारी आर्मी को वो डिसबैंड कर देते थे, तो वो लोग भी अनएम्प्लॉयड हो गए. जो लोग भी इन राजा महाराजा के ऊपर निर्भर हुआ करते थे, उनके दरबार में नौकरी करते थे, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए. और इसी के कारण क्या हुआ, और जिस तरीके की ट्रीटमेंट इन्होंने ब्रिटिशों ने भारतीय राजा और उनकी फैमिली को दी, नागपुर का उदाहरण हमारे सामने है, उसके कारण ब्रिटिशों के खिलाफ काफी गुस्सा लोगों के मन में था, और दैट बिकेम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857. देखिए, बहुत क्लोज की घटना है. नागपुर का एसिमिलेशन 1854 में हुआ, झांसी का 1853 में हो गया, और हम लोग देखते हैं कि झांसी की रानी, she became an important rallying point in the revolt of 1857. She gave leadership to the people, and this anger, it kept on nurturing in the mind of the people. तो डलहौसी का जो डिसीजन था वो हर समय सही भी नहीं था. इस बात को ईस्ट इंडिया कंपनी भी ने भी स्वीकृत किया था कुछ केस के बारे में. उन्होंने कहा था कि प्रोटेक्टेड एलाइज और डिपेंडेंट स्टेट है, इसमें फर्क है, और इसीलिए भगत और उदयपुर जो कि डलहौसी ने एसिमिलेट कर लिए थे, उसको बाद में लॉर्ड कैनिंग ने रिवोक कर दिया डिसीजन को, एंड ये जो दोनों किंगडम थी उनके रूलर को वापस कर दी गई. ये ऑफकोर्स दैट इज आफ्टर द रिवॉल्ट. जब रिवॉल्ट के समय ब्रिटिशों की थोड़ी आंखें खुली, उनको लगा कि इस तरीके से करने से भारतीय लोगों के मन में काफी क्रोध हो जाएगा, एंड देयर विल बी अगेन ब्लडशेड, देयर विल बी अगेन वॉर एंड रिवॉल्ट. सो दे हैव ट्राइड टू पैसिफाई द इंडियन पीपल. और ये जो दो डिसीजन थे, भगत और उदयपुर, those kingdoms were returned back to their ruler. और करौली का भी जो स्टेट था, that was also revoked by the court of director. करौली का भी जो स्टेट डलहौसी ने एसिमिलेट कर दिया था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, ये that is unjustified, and the state of Karoli was also given back to their ruler. So here we have studied about the doctrine of lapse. हमने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत पहले से था, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था. डलहौसी ने उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया,
और एक कोइंसिडेंस था कि व्हेन डलहौसी केम, यहाँ के बहुत सारे राजाओं के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं थे और सक्सेसर जो अडॉप्टेड चाइल्ड को उसने मानने से मना कर दिया। स्टेट्स का डिवीजन जरूर उसने किया था, लेकिन उसको अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करता था। और कई सारे कारण थे कि ब्रिटिशों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी। फिर हमने 3 केस थोड़े डिटेल में पढ़े, सातारा, नागपुर और झांसी। सातारा और नागपुर की किंगडम कैसे इंडिपेंडेंट थी, वो ब्रिटिशों ने नहीं बनाई थी, बट द ब्रिटिशर्स हैव गॉन बैक टू देयर ओन प्रॉमिस, दे ट्रीटेड दिस किंगडम एज लैब्स। और झांसी का भी जो था 1817 में जो प्रॉमिस उसने राजा को किया था, वो बात उसने नहीं मानी। एंड this is where we end. Well, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, our syllabus is over now.